ایک ایسے مہرے کی کہانی جس نے ساری بازی پلٹ دی تھی۔ مہرہ ایپیسوڈ 2۔ طیب رسول نے کہا، مجھے کچھ مہینوں کے لیے شہر سے باہر جانا ہے۔ ایک کمپنی کی طرف سے مجھے آفر ہوئی ہے، وہاں ان کو مزدور پیشہ لوگ چاہیے۔ میں تم کو اور جمیلہ کو کچھ عرصے کی جدائی دے کر ہمارا مستقبل بنانا چاہتا ہوں۔ جمیلہ کا علاج بھی ہو جائے گا۔ پھر کہتے ہیں نا، ظفر وسیلہ ظفر۔ تو میں یہ سفر کرنا چاہتا ہوں تمہارے لیے، جمیلہ کے لیے۔ ریحانہ اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن میں وہاں سے رابطہ شاید نہ کر سکوں، مگر کوشش کروں گا کہ اپنی حریت کی اطلاع دیتا رہوں۔ تم کیا کہتی ہو؟ طیب رسول اپنی بات مکمل کر کے سوالیہ نظروں سے بیوی کو دیکھنے لگا تو ریحانہ نے اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھا اور بولی، آپ نے جو فیصلہ کیا میں آپ کے ساتھ ہوں، اور جو آپ کے دل میں ابھی تک ہے اور قانون نے نہیں سنا، اس پر بھی بھروسہ کرتی ہوں۔ طیب رسول حیران ہوا کہ اس کی بیوی کیسے اندر تک جھانک لیتی ہے۔ وہ نظریں چرا گیا تو ریحانہ نے اپنا دوسرا ہاتھ طیب رسول کے ہاتھ پر رکھا اور بولی، مانا کہ آپ کی جدائی مجھے بے چین رکھے گی، مگر میں اپنی بیٹی کے لیے آپ کا ساتھ دوں گی۔ آپ بیگم اپنا کام کریں، آپ ہمیشہ مجھ کو صابر پائیں گے۔ طیب رسول نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا اور دونوں رونے لگے۔ ریحانہ نے طیب رسول کی ہمت بڑھائی، اور طیب رسول ریحانہ کو ایسے ہی چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنے حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایسا فیصلہ کر رہا تھا جس میں حالات تو سدھر جاتے مگر وہ اپنے پیاروں سے بچھڑ جاتا۔ یہ کڑا امتحان کیسے پار ہوگا؟ طیب رسول کو اس کا علم نہیں تھا۔ وہ رات بھر ریحانہ کو تسلیاں دیتا رہا۔ جب صبح ہوئی وہ مسجد چلا گیا اور اپنے مالک سے رہنمائی مانگنے لگا۔ پھر واپس آ کر اس نے ریحانہ کو دکھانے کے لیے اپنے کچھ کپڑے ایک شاپر میں رکھے۔ جمیلہ کو پیار کیا اور ریحانہ کی طرف دے کر بولا، میں جلد ہی تم کو اپنے پہنچنے کی اطلاع دوں گا۔ ہم کو اپنا سفر آج ہی شروع کرنا ہے۔ ریحانہ نے آنسو بڑی آنکھوں سے اسے رخصت کیا۔ طیب رسول آخری الوداعی نظر بیوی اور بیٹی پر ڈالتا اپنے گھر سے نکل آیا۔ وہ دور تک پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتا، اس کی آنکھیں دھندلا رہی تھی۔ پھر اس کا گھر نظروں سے اوجھل ہو گیا اور وہ تیز تیز قدموں سے مین بازار کی جانب چل دیا۔ مین بازار کی دکانیں کھل چکی تھیں۔ کچھ مزدور کھڑے ڈالے والوں کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے طیب رسول کو دیکھا اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اسی اسنا میں طیب رسول کو وہ کل والی سلور ہونڈا سیوک آتی نظر آئی تو وہ فرنٹ ڈور کھول کر اندر جا بیٹھا۔ اس کا دل مردہ ہو رہا تھا۔ سلام کے بعد اس نے ڈرائیور سے کوئی بات نہ کی اور اس سے رومال لے کر چہرہ چھپا لیا۔ گاڑی اسی پوش علاقے میں داخل ہوئی اور طیب رسول اتر کر اندر چلا گیا۔ سیٹھ کرامت بڑی بے چینی سے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ طیب رسول سلام کرتا ہوا سامنے کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ سیٹھ نے گلا کھنکار کر بات شروع کی۔ وہ طیب رسول کی حالت بھانپ کر بولا، تو تم نے کیا فیصلہ کیا؟ طیب رسول نے گردن اٹھائی اور بولا، سیٹھ جی مجھے منظور ہے، مگر میری ایک شرط ہے۔ سیٹھ کرامت چونک کر طیب رسول کی طرف دیکھا اور بولا، ہاں ہاں بولو۔ طیب رسول نے سیٹھ کرامت کی طرف دیکھتے ہوئے پہلو بدلا اور گویا ہوا، سیٹھ جی میں اپنی بیوی اور بچی کے لیے ایک دم سے نہیں مر سکتا۔ پھر اس نے جو بات ریحانہ کو بتائی تھی وہ ساری بات سیٹھ کرامت کو بتا دی۔ طیب رسول چپ ہوا تو سیٹھ کرامت کی آواز ابھری، مجھے منظور ہے، مگر میں چاہتا ہوں اگر تم اس کام کے لیے تیار ہو تو ان کو انتظار کی سولی پر لٹکانا زیادتی ہوگی۔ کچھ عرصہ بعد ہم ان کو تمہارے دنیا سے کچھ کرنے کی اطلاع دے دیں گے۔ سیٹھ نے طیب رسول کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو طیب رسول کی آنکھوں میں نمی صاف دکھائی دی۔ ٹھیک ہے سیٹھ جی، میں تیار ہوں۔ طیب رسول تھکے ہوئے لہجے میں بولا، ٹھیک ہے طیب رسول، میں نے ایمان کو بتایا ہے، ٹھیک 3 مہینے بعد حاکم لوٹ آئے گا۔ ابھی اس کا علاج چل رہا ہے، وہ بات کرنے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہے، اس کو ٹھیک اور مکمل صحت یاب ہونے میں وقت لگے گا۔
जैसे ही वो ठीक होगा पाकिस्तान आ जाएगा, और तब तक सेठ करामत ने ठंडे लहजे में कहा, और तब तक तुमको हाकिम बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी। हाकिम कैसे बोलता था, खाता था, चलता था, सब कुछ तुमको राजदारी में सिखाया जाएगा ताकि ईमान को यकीन हो कि तुम असली वाले हाकिम हो। तैयब रसूल ने समझकर गर्दन असबात में हिला दी। इस दौरान हम तुम्हारी बीवी और बच्ची को खर्चा देते रहेंगे और तुम्हारी बेटी का इलाज भी करवा देंगे। और एक बात याद रखना तैयब रसूल, अगर तुमने हमको धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हारी दुनिया भी उजड़ जाएगी और आखिरत भी। सेठ करामत की बात पर तैयब रसूल तरफ उठा। नहीं सेठ जी, मैं आपको और ईमान बीबी को कभी धोखा नहीं दूंगा, और अगर ईमान बीबी ने मुझे पहचान लिया तो? तैयब रसूल ने सेठ करामत से पूछा। ऐसा मुमकिन है, मगर हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा मरहला ना आए। जीटा तुमको पूरी तरह तैयार कर देगी, वो माहिर लड़की है। हाकिम की डायरी वीडियोस से मदद लेकर वो तुमको इस जैसा बना देगी। सेठ ने बात मुकम्मल की। ये जीटा कौन है सेठ जी? तैयब रसूल ने पूछा। जीटा को एक कंपनी में से मैंने तुम्हारे लिए हायर किया है। वो लोग राजदारी से अपना काम करते हैं और मुआवजा लेते हैं। सेठ करामत ने अपनी बात मुकम्मल की और उठ खड़ा हुआ। तुम अब ड्राइवर के साथ इनके कैंप जाओगे। रुमाल चेहरे पर बांध लो, ठीक 3 महीनों बाद मुलाकात होगी। तैयब रसूल ने रुमाल से चेहरा छुपाया और सेठ के साथ बाहर आ गया। ड्राइवर को देखते ही सेठ करामत बोला, गनी, इसको जीटा के पास छोड़ दो, और वापस पलटकर तैयब रसूल से मुसाफा किया और बोला, मेरी एक बात याद रखना, तकलीफ के बगैर आसानी नहीं मिलती। मैं ये सब करने पर मजबूर हूँ, और तुम भी। तैयब रसूल ने गर्दन असबात में हिला दी और गनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर फ्रंट सीट पर बैठ गया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी उस पोश इलाके से निकलकर शहर के बाहर एक सुनसान इलाके की तरफ जा रही थी। तकरीबन 1.5 घंटा के सफर के बाद वो शहर से बाहर बनी एक बिल्डिंग के सामने पहुंच गए। बिल्डिंग के इतराफ में कोई और इमारत ना थी। दूर तक फैला सब्जा और कांटों की बाड़ लगी हुई थी। गनी ने गाड़ी कार पार्क में खड़ी की और इस पिनारी नाम की बिल्डिंग में घुस गया। तैयब रसूल उसके पीछे पीछे था। दाखिली दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वो लॉन्ज में दाखिल हुए। सामने बने रिसेप्शन पर एक काफी मॉडर्न लड़की फोन पर मसरूफ दिखाई दी। सुर्ख और सफेद रंगत शानों तक कटे बाल, रेड शर्ट और ब्लैक जीन्स में मलबूस वो इंतहाई खूबसूरत लड़की थी। फोन रखकर वो गनी की तरफ मुतवज्जो हुई और अपनी पेशा वराना मुस्कुरा चेहरे पर सजा कर बोली, हाउ मे आई हेल्प यू? तो गनी ने तैयब रसूल की तरफ इशारा करके कहा, इसकी जीटा के साथ मीटिंग की बात की। तो उसने 1 मिनट कहकर इंटरकॉम के बटन पुश किए और उनको फ्लोर नंबर 13 पर जाने का बोल दिया। गनी इसका शुक्रिया अदा करके लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। वो दोनों लिफ्ट में दाखिल हो गए और 13 फ्लोर का बटन पुश कर दिया। लिफ्ट थोड़ी देर चली और फिर रुक गई और वो बाहर आ गए। तैयब रसूल के चेहरे पर अभी तक रुमाल था। वो राहदारी से होते हुए एक दरवाजे के सामने रुक गए। गनी ने दस्तक दी तो एक मुतरन्नम आवाज आई, कम इन। दरवाजा खुला हुआ था। वो दोनों आगे पीछे अंदर दाखिल हुए तो वो एक बहुत वसी और रीज कमरा था। तैयब रसूल हैरान नजरों से इस कमरे को देखने लगा। ग्रे कलर का नफीस कारपेट, दीवारों पर व्हाइट एंड सी ग्रीन पेंट किया गया था। एक तरफ कॉर्नर सोफा, दरमियान में शीशे का टेबल और इस पर डेकोरेशन पीसेस रखे हुए थे। सामने ही 70 इंच की LCD लगी हुई थी। एक तरफ डाइनिंग टेबल और चेयर्स लगी हुई थी। बीच में स्विमिंग पूल के साथ ही छोटा सा जिम बना हुआ था। फिर एक ग्लास वॉल थी जिसके अंदर एक जहाजी साइज बेड रखा था और बेड के आगे एक हेड रेस्ट रखा हुआ था। इस कमरे को फिरोजी पेंट किया गया था। छत पर छोटी छोटी लाइटिंग लगी थी और रेड बेड कवर्स के साथ ब्लैक कशन रखे गए थे। दीवारों पर मोनालिसा की पेंटिंग लगी हुई थी। ये एक मुकम्मल सेटअप था। वेल हेलो,
एक जानब से आवाज उभरी। तैयब रसूल जो होनकों की तरह सब कुछ देखे जा रहा था, उसने इस जानब देखा जहां एक बरतानवी नसाद लड़की खड़ी थी। सुर्ख और सफेद रंगत, शानों तक कटे गोल्डन बाल, मुतनासिब कद और सांचे में ढला वजूद। उसने ब्लू टाइट जीन्स पर ब्लैक टॉप पहना हुआ था। तैयब रसूल ने इससे पहले इतनी हसीन लड़की ना देखी थी। वो करीब आई और मुस्कुरा कर हाथ आगे बढ़ा दिया। तैयब रसूल इसकी गहरी नीली आंखों को देख रहा था। तैयब रसूल ने हाथ माथे पर ले जाकर सलाम किया तो वो हंस पड़ी और हाथ पीछे खींच लिया। वेलकम मिस्टर हकीम, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तो तैयब रसूल गनी की तरफ देखने लगा। गनी ने जीटा को हेलो कहा और तैयब रसूल के बारे में मुख्तलिफ हदायत देकर जाने लगा। तो तैयब रसूल घबरा गया। गनी भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? तैयब रसूल ने मुड़कर गनी का हाथ पकड़कर पूछा तो गनी ने अपना हाथ छुड़ाकर सख्त नजरों से तैयब रसूल को घूरा। यहाँ तुमको 3 महीने अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करनी है मैडम जीटा के साथ। गनी ने जाना चाहा मगर तैयब रसूल फिर इसके साथ चलने लगा। गनी ने गुस्से से उसे देखा तो वो रुक गया और बोला, गनी भाई, मैं कैसे यहाँ अकेला इस जनानी के साथ? वो जीटा को देखकर बोला, जो बड़ी दिलचस्पी से उसे घूर रही थी। तो सटका कर वो गनी को मदद तलब नजरों से देखने लगा। गनी ने गहरा सांस लिया। तैयब रसूल, तुमको हक बाबा बनने के लिए यहाँ रहना पड़ेगा और जीटा मैडम तुमको ट्रेनिंग देंगी, गनी रसान से बोला। तैयब रसूल ने फिर डरते हुए जीटा को देखा। रुमाल अभी तक इसके चेहरे को छुपाए हुए था। जीटा इसकी हालत से महजूज हो रही थी। गनी उसको तसल्ली दिलासा देकर चला गया तो जीटा छोटे छोटे कदम उठाती उसके पास आई और हाथ में पकड़ी पेन से इसका रुमाल हटाया। तैयब रसूल ने आंखें फाड़ फाड़ कर जीटा की ये हरकत देखी तो जीटा मुस्कुरा कर रुमाल एक तरफ उछालते हुए बोली, इंटरेस्टिंग। तो तैयब रसूल कांपते हुए लहजे में बोला, जी। तो जीटा का कहकहा निकल गया। उसने मुड़कर सोफे पर नशिस्त संभाली और तैयब रसूल को बैठने का इशारा किया और बोली, तुम क्या करते हो? तैयब रसूल वो इसकी शाइस्ता उर्दू पर हैरान होते हुए बोला, मजदूर हूँ जी। जीटा के लब ओ के अंदाज में खुले और उसने टेबल पर रखे कागजात की तरफ देखा और बोली, सेठ करामत ने मुझे बताया था तुम्हारे और हाकिम के बारे में। वो मुस्कुरा कर गोया हुई, अमेजिंग, तुम दोनों में कोई फर्क नहीं, लेकिन वो चाहते हैं तुम्हारी बोलचाल गर्ज हर चीज हाकिम की तरह हो। तो आज से मैं तुमको हाकिम बुलाऊंगी ताकि तुम इस नाम से मानूस हो जाओ। तैयब रसूल की आंखों में नमी उतर आई तो जीटा उठकर इसके पास सोफे पर बैठते हुए बोली, मुझे मालूम है तुम अपना नाम जो कि तुम्हारी पहचान है, गुम हो जाने पर अफसुर्दा हो। जीटा ने प्यार से अपना हाथ तैयब रसूल के हाथ पर रखा तो तैयब रसूल उछलकर दूर जा बैठा। नहीं मैडम जी, मैं ठीक हूँ, वो कदरे नागवारी से बोला। उसको जीटा की यह हरकत अच्छी ना लगी। जीटा ने तौसीफी नजरों से तैयब रसूल को देखा। वो इतनी खूबसूरत थी कि मर्द इसकी चाहत में मुब्तला नजर आते थे, मगर ये कैसा मर्द था जिसने उसे इस काबिल ना समझा कि इसके साथ भी बैठ सके। वो मुतमिन हो गई। अब उसे कम से कम ये खतरा नहीं था कि तैयब रसूल ट्रेनिंग में दिलचस्पी लेने की बजाय उसमें दिलचस्पी लेगा। वो उठी और अपनी जगह आकर बैठ गई और बोली, हाकिम। तो तैयब रसूल को अजीब लगा, मगर अब ये नाम इसकी मजबूरी बन चुका था तो वो सर झुकाकर इसकी बात सुनने लगा। वो उठ खड़ी हुई। जैसा कि तुम देख रहे हो, यहाँ ऐसा सेटअप किया गया है जिसमें तुमको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से अब तुम तभी निकलोगे जब तुम तैयार हो चुके होगे। तैयब रसूल ने गर्दन असबात में हिला दी। यहाँ जरूरत की हर चीज मौजूद है। तुम्हारे नाप के लिबास वार्डरोब में मौजूद है। तुम फ्रेश हो जाओ, हम कल से ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, जीटा ने मुस्कुरा कर कहा और वहां से चली गई। तैयब रसूल होनकों की तरह आगे पीछे का जायजा ले रहा था कि दरवाजा फिर बजा। मे आई कम इन सर? रूम सर्विस वाला बोला तो तैयब रसूल को समझ न आई कि क्या बोले। वो कमरे के बीच में खड़ा परेशान हो रहा था। जी, तैयब रसूल ने कंफ्यूज होते हुए कहा। रूम सर्विस वाला अंदर आ गया। वो दुबला पतला 24-25 साल का लड़का था।
अपने यूनिफॉर्म में वो खासा मुअद्दब नजर आ रहा था। मेरा नाम आसिम है सर, मुझे मैडम जीटा ने भेजा है, आप बराए मेहरबानी मेरे साथ आइए। तैयब रसूल ने हाँ के अंदाज में गर्दन हिला दी और उसके साथ चल पड़ा। आसिम इसको लिए एक कमरे की तरफ बढ़ा जो ग्लास वॉल बेडरूम के एक कोने में बना था। वो अंदर दाखिल हुए तो तैयब रसूल की आंखें फटी की फटी रह गईं। इस कमरे में एक तरफ बने वार्डरोब्स में 3 पीस सूट, नाइट सूट, पार्टी वेयर, कैजुअल वेयर, टाइयां, जुराबें, घड़ियां, परफ्यूम, सब कुछ था। आसिम तैयब रसूल को देखकर बोला, सर आप इस वक्त क्या पहनना पसंद करेंगे? जो तुम बोलो। तैयब रसूल के पास हमेशा 2 या 3 जोड़ी कपड़े ही रहे थे। पहले फट जाते तो दूसरे जोड़े के पैसे वो जोड़ पाता। आसिम आगे बढ़ा और नाइट का ट्राउजर, ग्रे वाइट शर्ट मुंतखब किया और आगे बढ़ गया। तैयब रसूल इसके पीछे था। आसिम बाथरूम में घुस गया और जकूजी में पानी खोल दिया। बाथ फोम की पूरी बोतल इसमें उंडेल कर उसने तैयब रसूल को अंदर बुलाया तो वो हैरान नजरों से बाथरूम को देखने लगा। ये खासा बड़ा बाथरूम था। वाइट टाइल से मुज़य्यन फ्लोर और दीवारें लाइट्स की रोशनी में चमक रही थी। आसिम उसको जकूजी के पास ले आया और बोला, सर आप बात लें, ये घंटी का बटन है, जब आप फारग हो जाएं तो ये दबा देना, मैं आ जाऊंगा। तैयब रसूल ने सर अस्बात में हिला दिया। बाथ फोम की खुशबू पूरे बाथरूम में फैल रही थी और पूरी बाथरूम स्टीम होती जा रही थी। कद आदम आईने स्टीम से धुंधला रहे थे। तैयब रसूल की दिमागी थकन उतरने लगी। उसने खुद को हालात के दाड़े पर छोड़ दिया। जकूजी की तरफ बढ़ गया जिसमें बाथ फोम जाग बना रही थी। आधे घंटे बाद तैयब रसूल बाथ लेकर बाहर निकला तो वो खुद को खासा हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। आसिम उसको देखकर मुअद्दब अंदाज में खड़ा हो गया। तैयब रसूल ने इसका अंदाज देखा और बोला, आसिम मेरे कपड़े पैक करके रख देना, पता नहीं कब इनकी जरूरत पड़ जाए। आसिम नासमझी से उसकी तरफ देखने लगा और अस्बात में सर हिला दिया और वहां से चला गया। तैयब रसूल वापस सोफे पर बैठ गया। उसे रेहाना और जमीला की याद आ रही थी। वो ठंडी सांस भरकर रह गया। थोड़ी देर में खाना आ गया मगर तैयब रसूल को भूख नहीं थी। उसने ट्रॉली की तरफ देखा। तंदूरी चिकन के साथ रोटियां थी, चिकन पास्ता के साथ फ्राई फिश और मशरूम्स, चिकन जलफ्रेजी के साथ सलाद और 3 इकसाम की टिप्स भी थी। वो आसिम को देखकर बोला, और भी लोग आ रहे हैं? वो सवालिया नजरों से पूछने लगा। नहीं सर, ये सिर्फ आपके लिए है, आसिम सर्व करते हुए बोला। एक रोटी के साथ थोड़ा सा सालन छोड़कर बाकी सब ले जाओ। तैयब रसूल बोला, रिस्क जाया नहीं करना चाहिए। जी सर, आसिम ने हुक्म की तामील की और डाइनिंग टेबल पर एक रोटी और एक प्लेट में सालन निकालकर साथ में सॉफ्ट ड्रिंक और पानी रख दिया और ट्रॉली धकेलता हुआ वापस चला गया। तैयब रसूल सोफे से उठकर डाइनिंग टेबल पर आ गया। खाना देखकर उसको रेहाना और जमीला की याद आई। उसने आगे पीछे देखा और इसकी आंखें झलक पड़ी। इस जहाजी साइज आरामदाह बेड पर सारी रात उसको नींद नहीं आई। फजर के टाइम बिस्तर से निकलकर बाथरूम में घुस गया। वुजू करके बाहर आया और जा नमाज नहीं मिली तो वो ड्रेस रूम से एक साफ चादर ले आया और कारपेट पर बिछाकर नमाज की नीयत बांध ली। नमाज से फारूक होकर उसने वॉल क्लॉक की तरफ देखा। सुबह के 6 बज चुके थे और बाहर काफी उजाला फैल चुका था। वो खिड़कियों के पास आया। इस बिल्डिंग के इर्द गिर्द कोई इमारत न थी। दूर तक फैला सब्जा और तार कोल की सड़क। वो पीछे हिट गया। दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो बोला, कौन है? आ जाओ। तो आसिम ट्रॉली घसीटता हुआ अंदर दाखिल हुआ। गुड मॉर्निंग सर, आसिम खुश दिली से मुस्कुरा कर बोला। तैयब रसूल ने अस्सलाम अलैकुम बोल दिया तो आसिम वालेकुम कहता नाश्ता लगाने लगा। अंडे, ब्रेड, मक्खन, जाम, स्कोन्स, टी पार्ट वो डाइनिंग टेबल पर रखता जा रहा था। तैयब रसूल बोला, चाय और डबल रोटी रहने दो, बाकी सब ले जाओ। तैयब रसूल का ठंडा लहजा सुनकर आसिम के तेजी से हरकत करते हाथ रुक गए। उसने अजीब नजरों से तैयब रसूल को देखा और चाय और ब्रेड के पीसेस छोड़कर बाकी सब ट्रॉली में रखकर बाहर चला गया। तैयब रसूल चाय में ब्रेड डबो कर खाने लगा। फिर वो चाय का कप उठाकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। बाहर तेज धूप फैल चुकी थी मगर 2 चीजें मुश्तरक थी, सन्नाटा जो एक बाहर था
اور دوسرا جو اس کے اندر تھا۔